Hello and welcome to everyone present here, students. Today we will discuss about the very first lesson of geography, and the name of the topic is India, size and location. भारत, उसका आकार और स्थिति. So it is a very interesting chapter, and we will know various aspects of India in terms of its location on the globe, and also we will try to know at whether its location at the head of Indian Ocean is going to provide some strategic value or not, and then we will also have some idea about its neighboring countries. So without wasting time, we come to our topic. Let us begin. Prior to make the detailed explanation of the chapter, let us have a quick look on the topics which we will discuss here. First of all, we will discuss about the location of India in terms of its latitude and longitude on the globe or world map. Then we will discuss about its size, इसका क्षेत्रफल कितना है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. Then we will discuss about India and the world, means the position of India on the world map is such a way that whether it is having some benefit to India in terms of maintaining trade relation or some diplomatic relation with other neighboring countries, and whether India is a landlocked country or it is situated on the busy ocean route, trade route. We will try to discuss it, and then we will have the last topic, India and its neighbor, भारत और उसके पड़ोसी देश. So let us begin. First of all, introduction. In introduction, let us have some idea about the country India. Although we are the citizen of our country India, so already we are knowing so many things, but let's have a quick look on the some ideas given in the book. India is one of the ancient civilization in the world. It is very fortunate that we have taken birth in the country like India, which has a very rich civilization, and it is one of the four civilization which had grown along the riverside. And India had also one of the civilization which is known as the Indus Valley civilization. You might have read about in this civilization in class 6, and furthermore, you may also get opportunity to read about this civilization. India has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. You already know that India is a country which was under the control of Britishers. India was not a free country, and the government was not of our own, and India was under the subjugation of British rule. So in that condition, India was not in position to make its all-round development. So after getting independence on 15 August 1947, India started to make progress in all aspects through 5-year plans and well-oriented development programs. And since independence, it has passed 70 years, almost more than 70 years, and it has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. तो आज जो भारत है पिछले 60-70 सालों में इतना प्रोग्रेस किया है कि वो हर क्षेत्र में, चाहे कृषि की क्षेत्र हो, उद्योगों का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में उसने काफ़ी प्रगति की. इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एक पार्ट रहा है. नाउ वी कम टू द फर्स्ट टॉपिक, लोकेशन. तो आइए सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ल्ड मैप में, वर्ल्ड या ग्लोब पर इंडिया का लोकेशन कहाँ है. वैसे आप जानते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट लोकेशन ऑफ एनी कंट्री इज डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. किसी भी देश की स्थिति को हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड की सहायता से पता करते हैं. सो हियर इट इज रिटेन इंडिया इज लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो भारत एक ऐसा देश है जो ग्लोब पर बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ये देखिए, दिस इज द मिडल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर. ये 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है, इक्वेटर कहलाता है. एंड इट डिवाइड्स द ग्लोब इन 2 इक्वल हाफ्स. तो ये ग्लोब को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है. आधा ऊपर वाला जो पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और आधा जो नीचे वाला पार्ट है ये साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. तो इंडिया का पोजीशन देखिए, ये जो पोजीशन है इंडिया का, इट इज टोटली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो भारत जो है एक ऐसा देश है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. As far as the latitudinal extent is concerned, the land extends between 8 degree 4 minute north latitude to 37 degree 6 minute 6 north latitude. तो भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो मतलब 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स तक है.
As far as the longitudinal extent is concerned, it is extended between 68 degree 7 minute east longitude to 97 degree 25 minutes its longitudes. तो लॉन्गिट्यूड्स का जहाँ तक पोजीशन है तो इंडिया जो है आप यहाँ देख सकते हैं. As far as the latitude is concerned, it is in between 8 degree 4 minutes north latitudes to 37 degrees 6 minute north latitudes, and as far as the longitude is concerned, it is in between 68 degree 7 minute east longitudes to 97 degree 25 minute east longitudes. The Tropic of Cancer is also a latitude, and it is situated on 23.5 degree north latitudes. Divide India into almost two equal halves. तो भारत से बीचों बीच से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड्स गुजरती है, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से गुजरती है. तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ये गुजरती है. तो ये इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं. द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी. तो इंडिया का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु था, आप कोई पूछेगा कि इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या था, जमीन का कौन सा सबसे दक्षिणम भाग था जहाँ से इंडिया शुरू होता था, तो उसका नाम था इंदिरा पॉइंट. और वो सुनामी 2004 में एक सुनामी आया था, बहुत बड़ा समुद्री मतलब तूफान आया था जिसे सुनामी कहते हैं. लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती है सुनामी में, उसमें ये डूब गया था, बहुत क्षति भी. इसके बारे में हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे. Now here we see the latitudinal locational and longitudinal location. Here you can see that as far as the latitude is concerned, India is situated between 8 degree 4 minute north latitudes to 37 degree 6 minute north latitudes. एंड एज ये जो है ये बड़ी रेखाएं हैं, ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं, इसको लैटिट्यूड्स कहते हैं. एंड लॉन्गिट्यूड्स जो लंबी लंबी रेखाएं हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक इंडिया है. और आप देख सकते हैं बीचों बीच एक लाइन है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से गुजरती है और इंडिया को टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है. Here you may see that the location of India, 8 degree 4 minute north latitudes to 37 degree 6 minute north latitudes, and 68 degree 7 minute east longitudes to 97 degree 25 minute east longitudes. And you may also see the नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन. तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत की चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है. और नॉर्थ साउथ जो है इंडिया की चौड़ाई है वो 3214 किलोमीटर है. Here you can see clear also नॉर्थ और साउथ के बीच में, मतलब भारत की जो है लंबाई कितनी है नॉर्थ टू साउथ, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है. और ईस्ट वेस्ट जो है इंडिया का वो 2933 किलोमीटर है. द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 32,87,364 स्क्वायर किलोमीटर. ये आपका डिटेल में है. ऐसे रफली मतलब इसको राउंड फिगर में कहते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो 32,87,364 स्क्वायर मीटर बोलिए या 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बोलिए. ये जो एरिया है ये वर्ल्ड के पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना है. इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. तो पूरे वर्ल्ड का जो एक जोग्राफिकल एरिया है उसका ये मात्र 2.4% है. वैसे इंडिया पूरे वर्ल्ड का 16% पॉपुलेशन रखती है, लेकिन जमीन के मामले में मात्र उसे 2.4% ही. दस इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. तो भारत अपने साइज के हिसाब से वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है. इससे 6 और बड़े देश हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर. तो भारत का जो सीमा है वो मतलब ज़मीनी सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, पड़ोसी देशों से लगती है. और कोस्टल लाइन है, मतलब तटीय रेखा है, समुद्र से लगने वाली उसकी सीमा है, उसकी लंबाई 7,516 किलोमीटर है. और ये इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड
एंड लक्षद्वीप, दो आइलैंड ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इंडिया में है, उनको मिलाते हुए ये 7,516 किलोमीटर है. As far as the size of India is concerned, you may see that the six other countries are bigger than India in terms of size, and they are Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia. तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं. RCU CBA, RCU CBA, तो R से रसिया हो गया, C से कनाडा हो गया, U से USA हो गया. तो RCU CBA, C से चाइना, फिर B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया. तो देखिए सबसे लार्जेस्ट जो कंट्री है उसका क्या है, मतलब एरिया 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. मतलब भारत से 5 गुना बड़ा रसिया है, भारत से 3 गुना बड़ा कनाडा है, भारत से 3 गुना बड़ा USA भी है, भारत से 3 गुना बड़ा चाइना भी है क्षेत्रफल में. तो रसिया तो 5 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, और कनाडा, USA और चाइना 3 गुना से भी ज़्यादा बड़े हैं. मतलब भारत जो है उससे जो नेक्स्ट सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, जो महादेश भी होता है, वो 2 गुना से ज़्यादा बड़ा है. तो बहुत सारे देश बड़े हैं इंडिया से, बट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया इज़ बाउंडेड बाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में पहाड़ है, हिमालयन माउंटेन रेंज है. And south of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean. और 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इंडिया जो है ये पतला होता जाता है साउथ में. टैपर मतलब पतला, संकीर्ण होते जाता है, इसकी चौड़ाई घटते जाती है 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद से, और ये इंडियन ओशन में आगे निकला तक, मैंने इंडियन ओशन में जाकर ये स्थित हो जाता है. और इस इंडियन ओशन को 2 पार्ट्स में बांटता है. इसका एक साइड में बे ऑफ बंगाल पड़ता है और दूसरे साइड में अरेबियन सी पड़ता है. साइज ऑफ इंडिया यू मे सी हियर दैट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, फ्रॉम हियर इंडिया टेंड्स टू गेट मोर नैरोअर. तो यहाँ से भारत जो है 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से पतला शुरू हो जाता है. और यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ द अरेबियन सी and Lakshadweep is the group of island, and this is the Indian Bay of Bengal, and here it is group of island known as Andaman and Nicobar. Okay, standard meridian. What is the standard meridian? You already know that the time of any country is determined by the standard meridian if the country is having more number of longitudes. We know that there is difference of almost 30 latitudinal and longitudinal extent of mainland India. तो हम देखते हैं कि देखिए यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स, मतलब लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग 30 लैटिट्यूड्स का अंतर हो गया, मतलब नॉर्थ और साउथ में भी. और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, तो ईस्ट वेस्ट में भी लगभग 30 लॉन्गिट्यूड्स का, तो 30 लैटिट्यूड्स का भी लगभग अंतर है, और 30 लॉन्गिट्यूड्स का भी इंडिया में अंतर है. तो अब लॉन्गिट्यूड्स तो हेल्प करता है हमें, मतलब टाइम को डिटरमाइन करने में. तो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स. तो गुजरात जो है वो आपका ईस्टर्न मोस्ट पास्ट है, वेस्टर्न मोस्ट पास्ट है, इंडिया का स्टेट है. ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के पास है, और अरुणाचल प्रदेश है जो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के पास है. तो इन दोनों के बीच में 30 लॉन्गिट्यूड्स गुजरती है, और एक लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करने में मतलब 4 मिनट्स का समय लगता है. तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का अंतर होता है समय में. लेकिन अब इस 2 घंटे को अंतर एक देश और घड़ी तो 2 चलेगी नहीं, इसलिए 2 तरह के टाइम होते हैं. एक लोकल टाइम होता है और एक स्टैंडर्ड टाइम होता है. तो किसी भी लॉन्गिट्यूड्स का जो टाइम होता है वो उसका लोकल टाइम कहलाता है. तो अब हम यह जानते हैं कि इंडिया में एक मतलब स्टैंडर्ड टाइम के लिए एक लैटिट्यूड्स को लिया गया है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स. ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है. इस पर जो टाइम होता है उसी को पूरे भारत का टाइम मान. तो स्टैंडर्ड टाइम is the time which replaces the many local times, because time is determined in respect to the sun, and when the sun is overhead it is supposed to be 12 o'clock at that place. But we already know there is only one sun, and at any time, at any moment, only one part of the earth facing the sun will have the time 12 o'clock. So there are altogether 360 longitudes on the globe.
360 longitudes there are on the globe, and all longitudes have their own time. दैट इज कॉल्ड इट्स लोकल टाइम. अभी जो सूरज के सामने लॉन्गिट्यूड होगा वहाँ 12 बजे दोपहर हो रहा होगा. अभी जो 12 बजे बज रहा होगा जो सूरज के ठीक सामने होगा, और उसका आगे वाला जो लॉन्गिट्यूड होगा वहाँ 12:04 हो रहा होगा. उससे जो आगे वाला होगा वहाँ 12:08 होगा, और जो पीछे है वो अभी 11:56 हो रहा होगा. तो कहने का मतलब कि 24 घंटे में जो टाइम होता है वो हर समय पृथ्वी पर कहीं ना कहीं हो रहा है. अभी कहीं 12 बजे रात भी हो रहा होगा, कहीं 3 सुबह भी बज रहा होगा, कहीं 3 शाम भी बज रहा होगा. 24 घंटा का जो टाइम है वो हर समय 360 लॉन्गिट्यूड पर हो रहा है, और यही 3 उस लॉन्गिट्यूड का लोकल टाइम होता है. तो अब क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है, तो इंडिया से 30 लॉन्गिट्यूड्स गुजरती है. तो 30 लॉन्गिट्यूड्स गुजरने से अब एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड जो सूरज के सामने से होकर गुजरता है तो उसमें 4 मिनट का समय लगता है. तो 30 × 4 = 120 मिनट्स. तो लगभग अब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर हो जाएगा इन एक्चुअल. तो क्योंकि अब ऐसे पोजीशन में अब एक देश में तो एक ही घड़ी होनी चाहिए, तो जोग्राफर लोगों ने ये डिसाइड किया कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से जो मतलब टाइम होगा लोकल, उस लॉन्गिट्यूड का जो टाइम होगा वही पूरे इंडिया का टाइम होगा. और दैट इज वाई देयर इज आल्सो ए क्वेश्चन दैट द सनराइज टेक प्लेस 2 hours लेटर in respect of Arunachal Pradesh in Gujarat, but even then the watches show the same time. मतलब अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे के बाद गुजरात में सूरज निकलता है, फिर भी दोनों जगह की घड़ियों में एक ही टाइम क्यों होता है? तो 2 घंटे का अंतर इन एक्चुअल है, लेकिन उसको हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने पूरे देश की घड़ी को 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का जो टाइम है उसी से सभी पूरे देश की घड़ी मिली हुई है, और इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं. Okay. India and the world. India is located in the center of the world between East and West Asia. सॉरी. तो आप देखिए लोकेशन ऑफ इंडिया को देखिए, ये एशिया कंटिनेंट है, और फिर ये इंडियन ओशन है, ये अफ्रीका महादेश है, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ चाइना है. तो ये सब ट्रेड है, डॉटेड लाइन से जो ये ट्रेड्स है. देखिए ब्लैक लाइन से भी दिखाया गया है, ये आपका ब्लैक लाइन से शिप आती है. पूरा वर्ल्ड का 90% वर्ल्ड ट्रेड शिप से होता है, पानी के रास्ते होता है. तो अब देखिए ये यहाँ से शिप आता है, स्वेज कनाल होते हुए, रेड सी होते हुए मुंबई पहुँचता है. मुंबई से फिर यह कोलंबो आता है, फिर इधर से होते हुए फिर ये आपका कोलकाता होते साउथ ईस्ट एशिया में है, फिर इधर जापान वगैरह जाता है. तो इस तरह से देखिए मतलब ये दिखाया हुआ है. ये देखिए रेड सी हो यहाँ से, ये सऊदी अरबिया है या अफ्रीका महादेश है. इन दोनों के बीच में ये जो पतला समुद्री इलाका है इसको रेड सी कहते हैं, और रेड सी और यहाँ मतलब मेडिटेरियन ओशन है. तो रेड सी और मेडिटेरियन ओशन के बीच में ज़मीन है, लेकिन यहाँ पर एक कैनाल है जिसका नाम है स्वेज कनाल. तो स्वेज कनाल बन जाने के बाद से यूरोप से जो जहाज़ हैं अब इसी स्वेज कनाल से होकर इंडिया आते हैं. तो 7000 किलोमीटर रास्ते की मतलब दूरी बचत हो जाती है. ये तो पहले पूरा अफ्रीका होकर आना पड़ता था. तो इंडिया का ये पोजीशन है कि जो मतलब यूरोप से जो जहाज आएगा पानी का, या फिर जो अफ्रीका से होगा, वो सब इस ट्रांस इंडियन ओशन रूट से ये इंडिया से ही इधर से ही होकर गुजरेंगे, फिर साउथ ईस्ट एशिया में. मतलब वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में इंडिया एक लिंक का काम करता है, और फिर यूरोप से भी आने वाले जहाज़ इधर से ही होकर जाते हैं, जो स्वेज कनाल से होकर आते हैं. ये देखिए डॉटेड लाइन स्वेज कनाल से आ रहे हैं. तो यहाँ कहा गया है कि इंडिया जो है, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. तो पूरे ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है. और ट्रांस इंडियन ओशन रूट, ये क्या है? द रूट अक्रॉस द इंडियन ओशन विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया. तो आप यहाँ मैप में देखिए कि जो मतलब यूरोप से जो जहाज आते हैं और ये साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं, इन दोनों के बीच में इंडिया होने से इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ लोकेशन मिल जाता है, सेंट्रल लोकेशन मिल जाता है. The Deccan Plateaus helps the India to establish close contact with East Asia, Africa and Europe from the western coast and Southeast and Eastern Asia from the west eastern coast. तो आप देखिए ये जो मतलब ये जो तिकोना जैसा पार्ट है इसे डेक्कन प्लेटू कहते हैं. ये इंडियन ओशन में बल्स किया हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है. तो इससे वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका का रिलेशन फिर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया से आसानी से होता है.
India and the world. India's contact with the world have continued through the ages. नहीं सॉरी, इसके पहले थोड़ा सा था. The ocean which is south of India gives name Indian Ocean, as no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India. तो किसी ये जो इंडियन ओशन है, इस ओशन में सबसे बड़ा कोस्टल लाइन इंडिया का है और इसी चलते इसका नाम इंडियन ओशन पड़ा हुआ है. इतना लंबा कोस्ट लाइन इंडियन ओशन में केवल इंडिया का है. And it is fortunate and that we have got the privileges that the name of the ocean has been named after our own country, India. India's contact with the world have continued through the ages, but her relationship through land routes are much older than her maritime contacts. तो इंडिया का वर्ल्ड के दूसरे देशों के साथ बहुत प्राचीन समय से ही संबंध रहा है, क्योंकि भारत की प्राचीन सभ्यता रही है और समुद्री मार्ग से जब तक संबंध नहीं था उससे पहले से ही जमीनी मार्ग से भी इंडिया का संबंध बहुत पुराना है. These routes have contributed in the exchange of ideas as commodities since ancient time. तो भारत से सामान, मसाले और विचार विश्व के कोने कोने तक पहुंचे जमीन मार्ग से पहले और फिर बाद में समुद्री मार्ग से. Since ancient times, the ideas of Upanishad, the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system could reach many parts of the world. तो भारत भी प्राचीन काल में विश्व का गुरु कहलाता था. इसके पास बहुत उपलब्धियां थी. तो भारत के उपनिषद जो थे, रामायण था, पंचतंत्र थी और भारत में जो दार्शनिक प्रणाली थी और शून्य का जो भारत ने आविष्कार किया था, तो ये सब विश्व के कोने कोने तक पहुंचे, क्योंकि भारत का रिलेशन विश्व के अन्य देशों में से के साथ जमीनी मार्ग से था और बाद में जमीनी मार्ग से तो बहुत पुराने समय से था, बाद में समुद्री मार्गों से हुआ. चीन के यात्री भी हिमालय क्षेत्र से होकर आए थे. फाहियान का नाम आप सुने होंगे. The spices, muslins and other merchandise were taken from India to different countries. तो भारत से मसाले, मलमल और बहुत सारे व्यापारिक वस्तुएं विश्व के दूसरे दूसरे देशों में जाती थी. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of domes and minarets from West Asia can be seen in different parts of India. तो आप देख सकते हैं कि भारत में भवन निर्माण जो कला है उसमें ग्रीक कल्चर का, ग्रीक स्थापत्य कला का ही उसमें झलक मिलता है. आर्किटेक्चर माने भवन निर्माण कला में. और ये जैसे डोम है, बड़े बड़े गोल गुंबद जैसे होते हैं ऊपर में, और मीनार जैसे लंबी लंबी मीनारा माने ऊंची चोटी जैसी महल में होते हैं, या मीनार होती है या डोम होते हैं, तो ये मेहराब होते हैं. तो इस तरह के आकृतियाँ आपको, जिससे कि अब आप देखिए ताजमहल में ऊपर में आपका डोम है, उसी तरह से आप मतलब देखिए आपका अगर बिल्डिंग देखते हैं आपका लाल किला, तो उसमें भी डोम्स का शेप मिलता है देखने. या पुराने पुराने मुस्लिम साम्राज्य थे तो उस समय भी बहुत सारे महल इस तरह के मिनार्स होते थे. तो इस तरह की चीज़ें हमें विदेशों से ये स्थापत्य कला भारत में. इंडियाज नेबर, भारत के पड़ोसी देश. इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. तो दक्षिण एशिया में इंडिया का बहुत ही सामरिक पोजीशन है, महत्व है. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज एज प्रेजेंट. आज वर्तमान में भारत में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. पहले 29 स्टेट्स होते थे और 7 यूनियन टेरिटरीज होती थी, लेकिन ऐसी अब बात नहीं है. अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. India shares its land boundaries with Pakistan, Afghanistan in northwest, China, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट. तो भारत का जो है आज के समय में 9 पड़ोसी देश हैं, और ये सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में इसका लैंड बाउंड्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगता है, फिर नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान से लगता है, और पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश से लगता है, और साउदर्न पार्ट में ओशन में इसके 2 पड़ोसी देश है, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव्स. श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फ्रॉम the Pak Strait and Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. तो श्रीलंका जो है साउथ में, इंडिया में साउथ में है, और इंडिया से ये अलग होता है एक जल पाक स्ट्रेट, जिसका नाम है पाक जल डमरू मध्य. तो स्ट्रेट एक समुद्र के शेप को कहते हैं, जो समुद्र जो दिखाई पड़ता है डमरू की तरह, और लक्षद्वीप से साउथ में गल्फ मतलब आपका मालदीव है. ये 9 नेबरिंग कंट्रीज देख सकते हैं. अफगानिस्तान और पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान है, ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार है, और साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स है.
सकते हैं आप। On 31st October 2019, Jammu and Kashmir Recognition Act 2019 was passed by the Parliament। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, और जम्मू कश्मीर जो स्टेट पहले होता था वो दो भागों में बट गया और दो यूनियन टेरिटरीज बन गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। मैप में देखिए अब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी और एक जम्मू एंड कश्मीर। पहले ये स्टेट होता था, 2019 से पहले ये एक स्टेट होता था। And two union territories, Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu, were merged to form a new union territory of Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu। तो दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव पहले दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज होते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिला करके एक यूनियन टेरिटरीज बन गया, जिसका नाम पड़ा दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। सो इस प्रकार से चेंजेज होने से टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इंडिया में आज के डेट में 8 और यूनियन टेरिटरीज है टोटल 8। तो आज के डेट में देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। आपका जीके का काम हो चुका है। अब कोई इफ एनीबडी आस्क यू हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन। Some facts: the southernmost point of India, Indira Point, got submerged in seawater in 2004 tsunami। तो 2004 में जो बहुत बड़ी सुनामी आई थी वर्ल्ड लेवल पर, उसके चलते भारत का साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जो कि मतलब अंडमान एंड निकोबार में होता था, वो डूब गया। सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। तो यूरोप से जो जहाज थे पहले, जो अफ्रीका से केप ऑफ गुड होकर रास्ते होकर आते थे, लेकिन 1869 में जब सुएज कैनाल बन गया तो यूरोप से और इंडिया के बीच में पानी के जहाज की दूरी 7000 किलोमीटर। बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली। So in this way we come to the end of this topic, and I hope you might have understood. Okay, thank you to all of you.